Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4 Algebraic expressions. Find a cube plus b cube when there are three parts. First, a plus b is 4 and ab is 5. So first we are going to find a cube plus b cube for first part, where a plus b is 4 and ab is 5. Now, what is the values of a cube plus b cube? So for this, apply the formula. And formula is a plus b whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay. Just putting the values in the formula, a plus b is 4. So 4 whole raised to power 3, which is equal to, we are going to find a cube plus b cube, and plus 3, putting the values of a, b, that is 5, and a plus b, that is 4. So find the 4 cube. So 4 cube is 64, and a cube plus b cube plus 3 5s are 15, or 5 4s are 20, and 23 is 60. Then as we need the values of a cube plus b cube, so subtract 60 on both sides. Okay, 64 minus 60 get 4, which is equal to a cube plus b cube. Apply symmetric property, or a cube plus b cube is equal to 4. This is our required answer. Comes to next part, when a plus b is 3 and ab is 20. Now according to second part, now a plus b is 3. So 3 whole cube, which is equal to a cube plus b cube, as we need the value of a cube plus b cube, so write it as it is. So 3 ab is 20, again a plus b, and that is 3. Okay, 3 raised to power 3 means multiply 3 times, so we get 27. A cube plus b cube plus, okay, 3 3s are 9, 9 2s are 18, so 180. Okay, subtract 180 on both sides, to 27 minus 180 मीन्स कि जब 180 राइट लेफ्ट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है. तो सब्ट्रैक्ट 180 को करते हैं, बोथ साइड यहाँ से कैंसिल हो जाता है. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ओके जी, अब 180 में से माइनस कर दें 27, कैरी करें 10 में से 7 माइनस कर दें 3, 7 में से 2 माइनस कर दें 5, सो 155 53 minus 153 because 180 is greater. Apply symmetric property, or a cube plus b cube is equal to minus 153. That is our required answer. Okay, next part 3, a plus b whole cube is equal to a cube. Okay, a plus b is 4, so 4 whole cube, which is equal to a cube
plus b cube plus 3ab is 2 and a plus b is 4. 4 cube 64, 4 4 is 16 and 16 4 is 64, and that is equal to a cube plus b cube plus 3 2 is 6, 6 4 is 24. Okay, now subtract 24 on both sides. So that will be 40. Or a cube plus b cube is equal to 40. ये आ जाएगा जी थर्ड पार्ट. यहाँ आके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट तो यहाँ के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Find a cube minus b cube. Again there are three parts. So first I'm going to write the first one. A minus b is equal to 5 and ab is 7, and find a cube minus b cube. So apply the formula, that is a minus b whole cube, which is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Putting the values of a minus b, that is 5 whole cube, which is equal to, as we need the value of a cube b cube, a cube minus b cube, so minus 3, just putting the values of a b, that is 7. Again a minus b, so write the values of a minus b, that is 5. 5 cube means 125. 5 को 3 times मल्टीप्लाई करें, 5 into 5 into 5, then we get 125. ठीक है, and that is equal to a cube minus b cube. Okay, 7 3s are 21 and 21 5s are 105. ठीक है, ओके जी, 105. अब चूंकि हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, माइनस 105 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ऐड करेंगे, 105 यहाँ के प्लस हो जाएगा, 105 विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब. ओके जी, दोनों को आप ऐड कर लें. 105 में 125 को ऐड कर दें, 10 1 कैरी होगा 3, तो 230. So a cube minus b cube. Apply symmetric property और करके a cube minus b cube की वैल्यूज जो हैं वो is equal to 230. That is our required answer. Next part पे जाते हैं. Second part, when a minus b is 2 and ab is 15. Okay, putting the values of a minus b, that is 2, or ab 15, so 2 whole cube, which is equal to a cube plus b cube minus 3ab is 15 and a minus b is 2. 2 raised to power 2 means 8. ठीक है, means 2 multiply 2 करें तो 2 cube 8, which is equal to a cube plus b cube minus 15. 15 to 3 is 45, तो 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 is 10, 8 और 9 90.
ओके, सब ऐड 90 ऑन बोथ साइड, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 8 के साथ, प्लस 90 हो जाएगा, which is equal to a cube plus b cube, that is 98 a cube plus b cube, or a cube plus b cube is equal to 98. That is our required answer. Comes to, अच्छा ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 7 है और 6 है। सो 7 और 6 की वैल्यूज हम डालते हैं इसी में। ओके, a minus b is 7 और ab is 6. So 7 whole cube, which is equal to a cube minus b cube minus 3, ab is 6 and a minus b is 7. 7 cube, 7 sevens are 49 and 49 sevens are 343. ओके जी, a cube minus b cube, अच्छा ये हम करें थर्ड पार्ट। ओके, a cube minus b cube minus 6 3s are 18 and 18 sevens are 126. ओके, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, माइनस 126 को लेफ्ट साइड लेकर आए तो ये ऐड हो जाएगा, तो 343 में हम ऐड कर देंगे 126, which is equal to a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो दोनों को ऐड कर दें, 3 और 6 9, 4 और 2 6 एंड 3 और 1 4, तो 469. सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 469. That is our required answer. यहाँ हमारा आके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएंगे। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 4.5 question number 3, find x cube plus 1 by x cube when x plus 1 by x is 5 by 2 and the second part is x plus 1 by x is 2. 2 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का डेटा लेते हैं, x plus 1 by x which is equal to 5 by 2. ओके, फाइंड हमने करना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यूज। सो अप्लाई फार्मूला। फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्यूब का है, सो एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल क्यूब which is equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 into x plus 1 by x. इस फार्मूले की हेल्प से हम जो है x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x plus 1 by x, that is 5 by 2. So 5 by 2 whole cube, x cube plus 1 by x cube as it is लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज चाहिए। 3 अगेन x plus 1 by x है, 5 by 2. ओके, 5 का क्यूब और 2 का क्यूब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब 125
2 का क्यूब आ जाएगा 8 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 3 5 ज़ा 15 बाय 2। अब 15 बाय 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड प्लस है, सो लेफ्ट साइड पे जब आएगा -15/2 that is equal to x cube plus 1 by x cube। ओके, यहाँ आप चूँकि देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है तो लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम लें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2 8। ठीक है, एलसीएम का सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता देती हूँ। 125 बाय 8 है, मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ तो ये 8 8 कैंसिल हो गया तो 125। ठीक है, सो 125 माइनस 15 बाय 2 को भी मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा जी 15 4 ज़ा 60 that is equal to x cube plus 1 by x cube। ओके, 125 में से माइनस कर दें 50, सो देखिए 125 माइनस 65 आ जाएगा 12 में 65, सो 65 by 8 and that is equal to x cube plus 1 by x cube। अच्छा, अब एज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर सो हम इसको डिवाइड करेंगे। 65 को 8 पे डिवाइड कर दें सो 8 8 ज़ा 64 1, तो 1 होल 8 होल 1 बाय 8। आप अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट डाल के 0, तो 8 1 ज़ा 8 2 आ जाएगा, फिर 0 8 2 ज़ा 16 1 आ जाएगा, तो 4 फिर 0 एंड 5 ज़ा 40। ठीक है, तो 8.125, सो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 8.125। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं इसी के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका x प्लस 1 बाय एक्स इज 2। ठीक है, सेम फार्मूला है, सो पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, सो 2 होल क्यूब which is equal to x cube 1 by x cube plus 3, x plus 1 by x की जगह हम अगेन 2 डाल देंगे, 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, that is equal to x cube plus 1 by x cube plus 3 2 is 6। okay, now subtract 6 on both side, so माइनस कर दें x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, 8 में से 6 माइनस कर दें 2 which is equal to x cube plus 1 by x cube, apply symmetric property, और x cube plus 1 by x जो है वो 1 by x cube that is equal to 2। ये आ जाएगा जी रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यहाँ हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5. Question number 4. Find x cube minus 1 by x cube when there are three parts. So I'm going to solve the first one when x minus 1 by x is 3 by 2. So for finding x cube minus 1 by x cube, apply the formula x minus 1 by x whole cube, which is equal to x cube minus 1 by x cube minus 3 into x minus 1 by x. Okay ji. Now putting the values x minus 1 by x, that is 3 by 2. So 3 by 2 whole cube, which is equal to x cube minus 1 by x cube minus 3. Now again putting the values of x minus 1 by x, that is 3 by 2. Okay, find the 3 cube and 2 cube, and 3 cube is 27 where 2 cube is 8, that is equal to x cube minus 1 by x cube minus 3 3s are 9 by 2. Now as we are going to find the values of x cube minus 1 by x cube, so add minus 9 by 2 on both sides. So 27 by 8 plus 9 by 2, that is equal to x cube minus 1 by x cube. So okay, so simplify the fraction by taking the LCM. Okay, taking the LCM, it is 8. ओके एलसीएम को सॉल्व करेंगे, 27 बाई 8 को मल्टीप्लाई करें 8 के साथ। तो ये देखें इस एलसीएम का एक और मेथड भी है कि देखें डिनोमिनेटर में 8 है, एलसीएम भी 8 है, तो ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 9 4 2 4 8 होता है, तो 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 36। ठीक है, वरना तो मैंने आपको नेक्स्ट मेथड बताया है 9 बाई 2 मल्टीप्लाई 8, तो कटिंग कर दें 4, सो 9 4 36। ठीक है, इस तरीके से भी आप रेफर करके एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके जी, 27 प्लस 36, देन वी गेट 63 by 8, and that is equal to x cube minus 1 by x cube. ओके, एज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करेंगे हम 63 को 8 पे डिवाइड कर दें, 63 8, तो 8 7 56, 13 में से 6 माइनस कर दें तो 7। ओके, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें आंसर को, डेसिमल में भी लिखा जा सकता है और मिक्स फ्रैक्शन में भी, तो ये हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 होल 1 बाय 7 बाय 8। ठीक है, 7 होल 7 बाय 8। साइड पर होता है कोशेंट, यहाँ होता है रिमाइंडर और ये होगा डिवाइजर, तो 7 होल 7 बाय 8, और चाहें तो डेसिमल में भी आंसर जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट आंसर। डेसिमल में लेकर आए तो 63 बाय 8 गिव 7.875 आंसर आएगा। ठीक है, कम्स टू नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 7 बाय 3। सेम फार्मूला यूज करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज नाउ। 7 बाय 3, 7 बाय 3 सेकेंड पार्ट में x माइनस 1 बाय x 7 बाय 3, सो 7 बाय 3 आ जाएगा होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब माइनस 3, एंड ये आ जाएगा 7 बाय 3। ओके, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ 7 का क्यूब 3 43 और 3 का क्यूब 27, विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 7। अब ऐड कर लेंगे, माइनस 7 लेफ्ट साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 343 बाय 27
प्लस 7 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, चूँकि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ भी हम अगेन एलसीएम लेंगे, सो दोनों का एलसीएम ले लें 27। ओके जी, 27 ओके आ जाएगा 343, क्योंकि 27 को कैंसिल कर देगा। 7 बाय 1 तो ज़ाहिर है 27 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो 27 7 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 189 प्लस 189 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। ओके, दोनों को ऐड कर दें, सो 189 में 343 को हम ऐड कर देंगे, तो 9 और 3 12, सो 8 4 12 13, तो 3 4 5 532 divided by 27 that is equal to x cube minus 1 by x cube। ओके जी, अब चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें या फिर डिवाइड करके डेसिमल में आंसर ले आएँ। सो एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 532 को 27 पे डिवाइड करें तो आंसर जी आ जाएगा, ओके 530 divided by 27 is equal to 19.7. This is our complete answer. Comes to third one. Third part में है हमारे पास 15/4। अब हम 15/4 वैल्यूज डालेंगे, फार्मूला सेम है बट अब 15/4। और थर्ड पार्ट। ओके जी, थर्ड पार्ट करें सेम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 15/4 तो 15/4 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 15/4। ओके, अब यहाँ आप देखें 3 और 4 की कटिंग नहीं होती है तो 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 15 का क्यूब ले लेंगे तो 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ओके जी, 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 3375 और 4 का क्यूब आ जाएगा 64 दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस, ओके 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 45 डिवाइडेड बाय 4। ओके जी, अब 45/4 को ऐड कर देंगे बोथ साइड, मीन्स कि यहाँ के ऐड हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 364 प्लस 45/4 which is equal to x cube minus 1 by x cube। now again taking the LCM तो 64 आएगा, दोनों का LCM निकालेंगे तो 64। ओके, अब ये देखें 64 उसको हमने सॉल्व किया है 64। ओके, अब 3375 के साथ जब 64/64 के साथ मल्टीप्लाई करें 64 को कैंसिल कर देगा, मीन्स के डिनोमिनेटर यहाँ का एलसीएम ही है तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 45/4 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोग 45/4 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं 64 तो 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा 16 4 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे then we get 720 and that is equal to x cube minus 1 by x cube। ओके, फर्दर कैलकुलेट करें, दोनों को ऐड करें तो 4095 डिवाइडेड बाय 64। ओके जी, अब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स क्यूब। अब आपने क्या करना है 4095/64 को डिवाइड कर देना है,
सो ये जी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4095 divided by 64. Then we get x cube minus 1 by x cube is equal to 63.93. So ये हमारा जो है ये 63.93 ये हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ आके जी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है. सो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो. सो कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.4 question number 5. Find 27a cube plus 1 by a cube when 3a plus 1 by a is equal to 4. Apply formula. A plus b whole cube which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Okay, now putting the values. अच्छा अब यहाँ आप देखें आपके पास जो है 3a प्लस 1 बाय a की वैल्यू जो है वो 4 दी हुई है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो है दैट इज़ a. ठीक है, और ये जो है ये b है. सही. सो a की वैल्यू 3a है, मीन्स a जो है वो 3a है और b जो है वो 1 बाय a है. तो आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ a है फार्मूले में वहाँ 3a डालना है, जहाँ b है वो 1 बाय a. सो 3a मीन्स कि आपने फार्मूले को रिप्लेस करना है 3 और प्लस 1 बाय a की फॉर्म में. ठीक है, दैट होल क्यूब इज इक्वल टू 3a होल क्यूब प्लस 1 बाय a होल क्यूब प्लस 3 a की वैल्यूज आ जाएगी 3a, b की वैल्यूज 1 बाय a, अगेन a प्लस b है, सो ब्रैकेट में आ जाएगा जी 3a प्लस 1 बाय a. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 3a प्लस 1 बाय a की वैल्यूज जो है दैट इज 4. So putting the values of 3a plus 1 by a, 4 whole cube which is equal to, okay, the cube of 3 is 27 और a का भी क्यूब है, प्लस 1 बाय a क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 3 9. ठीक, और ये a इस a को कैंसिल कर रहे हैं, पीछे क्या रह गया ब्रैकेट में 3a प्लस 1 बाय a, 3a प्लस 1 बाय a रह गया. नेक्स्ट स्टेप में हमने 3a प्लस 1 बाय a की दोबारा वैल्यूज डाल देनी है. ओके, 4 का क्यूब 64, 4 4 ज़ 16 एंड 16 4 ज़ 64, दैट इज इक्वल टू 27a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब प्लस 9 into, again putting the values of 3a plus 1 by a, that is 4, 9 4 ज़ 36, 64 which is equal to 27a cube plus 1 by a cube. Okay, as we are going to find the values of 27a cube plus 1 by a cube, so subtract 36 on both sides. So 64 minus 36 is equal to 27a cube plus 1 by a cube. Okay, 64 में से 36 को माइनस कर दें, that is 28,
which is equal to 27a cube plus 1 by a cube, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 27a cube plus 1 by a cube is equal to 28. So this is our required answer. Okay, comes to next question number 6. Question number 6, find x cube minus 1 by 8x cube if x minus 1 by 2x is equal to 6. अब चूँकि देखें यहाँ हमारे पास क्यूब जो है माइनस में है तो हम माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स के a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन में आप देखें a की वैल्यूज x है, मीन्स a जो है दैट इज इक्वल टू x और b जो है दैट इज 1 by 2x. ठीक, सो जहाँ a है वहाँ x डाल दें, जहाँ b है वहाँ 1 by 2x. तो 1 by 2x होल क्यूब इज इक्वल टू x होल क्यूब 1 by 2x होल क्यूब माइनस 3 अगेन x b 1 by 2x और a माइनस b है तो ब्रैकेट में a की जगह x और b की जगह 1 by 2x. ओके जी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1 by 2x दैट इज 6. सो 6 होल क्यूब विच इज इक्वल टू x क्यूब 1 by 2 का क्यूब आ जाएगा 8x क्यूब माइनस 3. ओके, यहाँ देखें ये एक्सिस x को कैंसिल कर रहा है, सो 3 1s are 3 by 2. सो ब्रैकेट में रह गया x माइनस 1 by 2x. 6 क्यूब मीन्स 6 6 are 36 and 36 6 to 16 which is equal to x cube minus 1 by 8x cube minus 3 by 2. Putting the values of x minus 1 by 2x that is 6. So यहाँ कटिंग कर लें, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Okay, 216 is equal to x cube minus 1 by 8x cube minus 3 3s are 9. Okay, minus 9. सो माइनस 9 को लेफ्ट साइड पर जब हम लेकर आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 216 के साथ. सो ऐड 9 ऑन बोथ साइड, 216 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 बाय 8x क्यूब. ओके, 216 प्लस 9, सो 9 और 6 15 and 225. x cube 1 by 8x cube. So apply symmetric property or x cube minus 1 by 8x cube is equal to 225. This is our required answer. Exercise 4.5, question number 7. If a plus b is equal to 6, show that a cube plus b cube plus 18ab is equal to 216. Once again cube है, so apply formula. चूँकि डेटा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव फार्मूला यूज करेंगे, a plus b whole cube which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ओके, अब यहाँ हम देखें a plus b की वैल्यू 6 गिवन है, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 6 होल क्यूब which is equal to a cube plus b cube plus 3ab. अगेन a plus b है, सो a plus b की जगह 6 वैल्यूज डाल दें. ठीक है, ओके, 6 का क्यूब 216
मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, देन वी गेट 260. ठीक है, ओके. दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 18. सो 18ab. सो प्रूव्ड. ये यहाँ आके जो है वो प्रूव हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अच्छा, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, if u minus v is equal to 3, then prove that u cube minus v cube minus 9uv is equal to 27. अब डेटा हमारे पास नेगेटिव में है तो फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे वो माइनस का होगा. सो a माइनस बी होल क्यूब is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. अब यहाँ आप देखिए डेटा u और v में है तो हम इस पूरे फार्मूले को u और v में कन्वर्ट करेंगे. तो u माइनस v होल क्यूब विच इज इक्वल टू u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3uv and u minus v. Now putting the values of u minus v, that is 3. So 3 whole cube which is equal to u cube minus v cube minus 3uv. Again u minus v here, so putting the values of 3. 3 raised to power 3 means 27. मीन्स के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो 27 आता है. ठीक है, ओके. देन वी गेट u क्यूब माइनस v क्यूब माइनस 3 3 ज़ा 9uv. सो ये यहाँ आके जो है वो रिजल्ट प्रूव हो जाता है. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.5, question number 9. The last question of the exercise, if a plus 1 by a is equal to 2, find a square plus 1 by a square, a4 plus 1 by a4 and a cube plus 1 by a cube. So first we are going to find a square plus 1 by a square. ओके जी. As we have a plus 1 by a is equal to 2. So find a square plus 1 by a square. Okay. So for this, using formula, apply formula, that is a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab. ओके, यहाँ इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ a की वैल्यूज तो a ही है बट b 1 by a है. सो रिप्लेस द फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ a plus 1 by a. So b is 1 by a whole square which is equal to a square plus 1 by a whole square plus 2a and 1 by a. ठीक है, यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो मर्जी है. ओके, अब a plus 1 by a की वैल्यूज दी हुई है 2. सो मीन 2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर प्लस ये a से को कैंसिल कर देगा, देन वी गेट 2. ओके, 2 square means 4 is equal to a square plus 1 by a square plus 2. Now subtract 2 on both side. So both side जब हम subtract करेंगे, so 4 minus 2, that is equal to a square plus 1 by a square. So means that 2 is equal to, so the values of
a square plus 1 by a square is 2. a square plus 1 by a square की वैल्यूज क्या आ गई 2. नाउ फाइंड ओके ये तो हमारे पास आ गई 2. नाउ फाइंड a4 plus 1 by a4. So for this again squaring on both side, again taking this squaring भी कर सकते हैं और फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं. अभी देखो we have the result that a square plus 1 by a square is equal to 2. So हम इसके अगर हम both side squaring कर लें, ठीक है, squaring on both side, squaring on both side. So a square plus 1 by a square whole square, that is equal to 2 whole square. ओके फार्मूला है ये आ जाएगा a square plus 1 by a square whole square plus 2ab. So a की वैल्यूज है a square and b is 1 by a square and that is equal to 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4. ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फार्मूला वही खोल दिया है, यही वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और वहाँ भी यहाँ सिर्फ ये है कि वहाँ फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज डाली थी, ठीक है, a प्लस 1 बाय a की फॉर्म में उसको रिप्लेस किया है. यहाँ मैंने इसी की स्क्वायरिंग बोथ साइड करके वही फार्मूला अप्लाई किया है, यही वाला, ठीक है, यही वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. बट यहाँ क्या है, a स्क्वायर जो है वो a है, ये तो ये a यहाँ a स्क्वायर और ये स्क्वायर फार्मूले वाला स्क्वायर है, ठीक है, प्लस ये b की वैल्यूज 1 बाय a स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर फार्मूले वाला स्क्वायर, ठीक है, देन प्लस 2ab. अब ये देखो ये स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहाँ ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 बाय a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 रह गया, दैट इज इक्वल टू 4. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड, तो a4 प्लस 1 बाय a4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2. सो a4 प्लस 1 बाय a4 दैट इज इक्वल टू 2. सो a4 प्लस 1 बाय a4 की पावर वैल्यूज भी 2 आ गई, मीन्स के इसकी वैल्यू भी 2 आई है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर भी 2 आया है, a4 प्लस 1 बाय a4 भी 2 आया है. नाउ फाइंड द थर्ड वन दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यूज, ये अब हम फाइंड करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब. सो इसके लिए हम दोबारा यही वैल्यूज लेंगे a प्लस 1 बाय a और इसकी करेंगे क्यूबिंग. ओके, इस थर्ड में जब हम ये फाइंड कर रहे हैं a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब की वैल्यूज़, तो इसके लिए हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और चूँकि डेटा जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा. सो अप्लाई फार्मूला, दैट इज a प्लस b होल क्यूब which is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ओके, इस फार्मूले में अब आपने इसको रिप्लेस करना है a प्लस 1 बाय a की फॉर्म में, फार्मूले को रिप्लेस कर दो, b की जगह 1 बाय a आ जाएगा, होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है और a का क्यूब आ जाएगा, प्लस 3a और b की जगह 1 बाय a, ठीक है. ओके, अब यहाँ a अगेन a प्लस b की जगह 1 बाय a. ओके, यहाँ हम देखें ये a इस a को कैंसिल कर देगा, ठीक है, यहाँ हम वैल्यूज डालेंगे a प्लस 1 बाय a की, दैट इज 2. सो 2 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब प्लस 3, और यहाँ दोबारा a प्लस 1 बाय a है, सो यहाँ इसकी वैल्यूज डाल देंगे 2, ठीक है.
ओके 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 8. सो a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब प्लस 3 2 6. अब चूंकि हमें a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब की वैल्यूज चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 6 को बोथ साइड. सो a minus 6 and that will be equal to a cube plus 1 by a cube. Okay, 8 में से 6 माइनस कर दें then we get 2. So a cube plus 1 by a cube. So means कि a cube plus 1 by a cube की वैल्यूज भी हमारे पास आ गई है 2. ठीक है, और करके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें. a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब दैट इज इक्वल टू 2. सो ये थर्ड भी हमारे पास 2 ही रिजल्ट आया. मीन्स के तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ रही है 2. सो एक तरह से रिजल्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट एंड में बनता है दैट द वैल्यूज ऑफ, अब इस तरह भी आपको दिया जाता है कि प्रूव दैट a प्लस 1 बाय a is equal to a4 plus 1 by a4 is equal to a cube plus 1 by a cube and all these are equal to 2. इसकी भी वैल्यूज 2 है, इसकी भी वैल्यूज 2 है और इसकी भी वैल्यू 2 है. तो मीन्स के all these are equal. ठीक है. सो समटाइम्स आपको क्वेश्चन में जो है वो डेटा यही दिया जाता है लेकिन प्रूफ की फॉर्म में भी दिया जा सकता है दैट प्रूफ दैट कि ऑल दीज 3 आर इक्वल. सही है. सो वैल्यूज हमारे पास इक्वल ही आती हैं लेकिन जब डेटा a प्लस 1 बाय a की फॉर्म में आपको दिया जाए. ठीक है. सो ये हमारे यहाँ आके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एक और नए फार्मूले के साथ. सो कीप वॉचिंग.